So the year in front of us is October November 1632, and the question that is in focus is evaluate the importance of strategic management to the future success of MFI. यानी strategic management क्या role play करेगा in the future success of this particular business? How will it help the business? How will it help the business achieve its goal? क्या क्या चीजें करने में वो हेल्प करेगा, क्या फायदे होंगे, क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ये सब चीजें हम देखते हुए चलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द केस एंड देन वी विल ट्राई developing this particular answer. We will not be able to dictate the complete answer, लेकिन हम फिर भी points jot down कर लेंगे. करते हैं start. October number 16 है, 32 है, and the case is Marco fishing. Sorry. So scanning start करते हैं. Marco has just congratulated himself on the completion of another takeover deal. The MFI fish processing and packaging business he controls is now one of the largest in Asia. इस बात को हाईलाइट कर लो अपने पास, एक बुलेट पॉइंट बना लो that this particular business is one of the largest in Asia. Macro bought his first boat when he was just 18 years old, and that was 15 years ago, which means this business is a well-established business. एक और बुलेट पॉइंट अपने पास बना लो that this is an established business. Marco has always been a hard worker. Okay. He used to fish longer each day than anyone else in his village, and his tuna fish catches were usually the biggest. Time भी ज़्यादा लगाता था, returns भी ज़्यादा आते थे. He sold all of his fish to a local entrepreneur, Lynn, who then distributed them to restaurants and fish processing factories in country X. When Lynn retired, he offered Marco his distribution business for $35,000. Marco negotiated and he got the business for $25,000, and 10,000 less than the asking price. He had good negotiation skills. Together with his ability to delegate effectively, he also has delegation skills, negotiation skills, and he is a hard worker. अब tell me one thing that ये एक fishing का business था जिसने अब एक distribution business को acquire किया है. Which type of growth is this? कोई बताएगा मुझे कौन सी growth है? जो एक चीज मेरे पास highlight हो रही है that this is external growth and it is vertical forward integration. कि एक बिजनेस से अपने से आगे वाले बिजनेस को अक्वायर किया है. वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. Several years ago, Marco gave up fishing himself and employed some local workers to take his boat out and do the heavy work of transporting the fish to customers. यानी जो heavy work है, जो manual labor है, workers खुद करें. And he started focusing on building up a customer base. यानी customer base बनाने पे उसने focus करना start किया. As he had good contacts in the industry, communication अच्छी थी इसकी. Soon, as customers grew, he had to buy more fishing boats to ensure adequate supply of tuna. Although the annual revenue of the business was rising, revenues बढ़ रहे थे, but profit margins were low. तो जब ऐसा हो रहा है तो the reason behind it is what? जब revenue बढ़ रहा है, profitability कम हो रही है, which means आपके operating expenses क्या है? ज़्यादा है. क्या है? ज़्यादा है. अपने पास एक bullet बना लो that the operating expenses are high. Most value was being created by the fish processing and packaging business. यानी सबसे ज्यादा अर्न कौन कर रहा है? फिश प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग बिजनेस, जो मार्को सप्लाई कर रहा है जिसको. Marco decided that the future success of his business depended on becoming a fish processing and packaging business. अच्छा, तो मार्को ने डिसाइड किया क्या? Convert the business into a private limited company. यानी अब क्या बन जाए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए ताकि फाइनेंस आए. कैसे फाइनेंस आएगा? क्योंकि शेयर होल्डर्स आएंगे. By Asia Fish Processing, one of MFI's largest customer. पहले भी इसने अपने कस्टमर को अक्वायर किया था ग्रोथ के लिए, अब वापस अपने कस्टमर्स को अक्वायर कर रहा है. रिक्रूट एंड एक्सपीरियंस ऑपरेशंस मैनेजर. ऑपरेशंस के अंदर हम किसी के साथ डील करते हैं? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मेथड्स एंड क्वालिटी. वॉइस इज नॉट क्लियर. सबके साथ मसला है? चेक कर लेता हूँ, एक मिनट वेट. Am I audible now? खराब क्यों हो रही है? अब बेहतर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट डील्स विद व्हाट? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मेथड्स एंड क्वालिटी.
देखते हैं आगे क्या हुआ। तो he recruited Suzy. Suzy reorganized the production and bought expensive new automated processing and packaging equipment, which contributed 75% increase in productivity. आपकी productivity कितने परसेंट से बढ़ गई है? 75% से. Encouraging existing managers to take more responsibility for accounting and human resource issues, allowing Marco to focus more on marketing. अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी responsibilities ये कम कर रहा है और workers को delegate कर रहा है, so he can focus on things which are more important. Isn't clear at all? अब clear है? अब clear है? अब चेक करो, बताओ क्लियर है? डिस्टर्बेंस खत्म हुई थोड़ी? हेलो, अभी भी डिस्टर्बेंस खत्म नहीं हुई है? अब क्लियर है? सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। MFI पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है विथ मार्को एज चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इन विच वी हैव टू ऑप्शंस। अब आगे देखते हैं। Marco has in recent months given directors of MFI the authority to implement two important decisions. दो important decisions है जो हम implement कर सकते हैं। Firstly, MFI bought another large food processing and packaging business. Business grow हो रहा है, अब business के पास 55% of the market share है। जब किसी एक कंपनी के पास more than 25% market share आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं monopoly. अब तो इसके पास 55% मार्केट शेयर आ गया है, तो इसके पास गवर्नमेंट की अटेंशन भी आएगी, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस भी आएगा। तो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? थ्रेटन कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंपटीशन के लॉज लगाने के लिए, बोलेंगे हम लॉज लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, व्हिच मे बी नॉट गुड फॉर द बिजनेस। The second decision was the introduction of a new brand name for the highest quality range of MFI's product called Fine Dine. यानी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर एंट्री हो रही है। Top quality ingredients are used and labeled as dolphin friendly tuna. Dolphin friendly tuna किसकी एग्जांपल है? Societal marketing. That they are fishing in a particular way जिसका सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। Tuna fish caught by fishing line with no risk to dolphins. Other fine dining features are what? Comparative prices. अच्छा. Distribution mainly through specialist food shops and social media promotions. ये हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है? स्पेशलिस्ट फूड शॉप से और सोशल मीडिया प्रमोशन हो रही है। इनिशियल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फाइन डाइन ब्रांड हैव बीन मोस्ट एनकरेजिंग। मार्को इज प्लीज्ड विद हिमसेल्फ बिकॉज़ इट वाज हिज आइडिया टू डेवलप दिस ब्रांड। यानी उसका आइडिया था और ये चल भी गया है। He had told other directors at the time he had made the decision, trust me, I know the market better than most people and even without a detailed market research. यानी एक बहुत बड़ी गलती करी है that he has not conducted an analysis और ऐसे ही मार्केट में एंट्री ली है। I can tell you, Fine Dine will be a winner. चल तो गया है, अगर नहीं चलता तो ये बैकफायर कर जाता। अब रीजन क्या है चलने का? तो कंट्री एक्स के अंदर इनकम्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू रिड्यूस द इनकम टैक्स। यानी गेम क्या चल रहा है? फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी। द गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे क्या गेम आया है? Recruiting a new operations manager. Suzy has recently resigned and Macro needs to recruit a new operations manager. नया बंदा चाहिए। Marco has asked a specialist recruitment agency, यानी outsource कर दिया इसने ये काम। सही है। And they have shortlisted 2 individuals. And then we need to select from them. Appendix 1 के अंदर डेटा दिया हुआ है दोनों एप्लीकेंट्स का, जो हम इवैल्यूएट करें ये कौन सा बंदा हमारे लिए ज्यादा सूटेबल। कोई बेस्ट पॉसिबल आंसर नहीं होता। इट इज ऑल अपॉन अस कि हम उसको इवैल्यूएट और अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है that the new operations manager will have to be very aware of the consequences to businesses such as MFI of the proposed new health and safety legislation which is being introduced in country X. नए लॉज लग रहे हैं और ऑपरेशंस मैनेजर को उस लॉज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो लॉज वर्कर्स की प्रोटेक्शन बढ़ा देंगे, उनको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है, और बेटर ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी जो वर्कर्स को देनी पड़ेगी। अगला पार्ट बात करते हैं। The directors of MFI have decided to start exporting the Fine Dine brand of fish products to country Y. नई कंट्री के अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है। At the most recent board meeting, the success of this country's economy was discussed. यानी country Y अच्छा परफॉर्म कर रहा है, and all directors agreed that this would be a good time to enter this market. Important marketing decisions will have to be taken to ensure consistency with the existing marketing strategy and alignment of the strategy with the market conditions in country Y. The board considered that a 5% market share in 2017 was a realistic sales objective. After the board meeting, Marco obtained a 2-year-old market research report on country-wise market for processed fish. यानी secondary data इसने उठाया है और वो appendix 2 के अंदर दिख रहा है और उसको इसने evaluate किया। अब ये investment decision है, investment appraisal की पूरी calculation है। इसका ये वाला आंसर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसको डिस्कस कर चुका हूँ, थ्योरी को और कैलकुलेशन को, तो ये वाला पार्ट हम स्किप करते हैं। ये कंसिडर कर रहे हैं दो ऑप्शन, वेदर टू परचेज 10 न्यू बोट्स और लीज 10 न्यू बोट्स, क्योंकि इनकी पुरानी बोट्स, इनकी जो बोट्स हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, वो इतनी अब एफिशिएंट नहीं है, वो है ना कंजम्पशन, उनकी है ना ऑयल कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। आगे बात करते हैं फूड पॉइजनिंग, आर MFI प्रोडक्ट्स टू ब्लेम। अब इशू क्या आया है, yesterday the national television station covered a story about the death of a woman from food poisoning. एक casualty हुई है। The reporter said that the woman's husband suggested, confirmed नहीं है लेकिन suggested, she had eaten a fish meal the night before and he thought, confirmed नहीं है, it was MFI branded fish product. अब thought भी है लेकिन नाम तो आ गया, which means brand image खराब हो। Marco was watching television in his office at the time. He immediately started making telephone calls and sending emails. Could he and his fellow directors cope with the crisis? अब देखते हैं वो क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास अपेंडिक्स आ गया दो कैंडिडेट्स का, किसको रखना है जॉब के लिए। ये अपेंडिक्स आ गया वो डेटा का जो सेकेंडरी रिसर्च है 2 साल पुरानी ऑन कंट्री वाई, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अपेंडिक्स है, एंड दैट्स इट। अब हमारे पास सवाल है यहाँ पर, discuss the importance of strategic management to the future success of MFI. तो देखो इस सवाल के अंदर हमारा फोकस किन किन चीजों पे होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सवाल सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, in which we will tell the examiner that it is the long term planning of the business which gives the business a direction. इसके अंदर जो स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक बात याद रखना, जब भी मैनेजमेंट की बात आएगी और इसकी इंपॉर्टेंस की बात आएगी तो आपके जहन में कुछ पॉइंटर्स क्लिक होने चाहिए, which means what, they will help in planning, allocation of resources, coordination, controlling, and the most important of them all is what, evaluation, that at the end result achieve हुए भी हैं या नहीं हुए। जिस तरह हम कंसिडर कर रहे हैं that we need to purchase boats, ठीक है। दूसरी बात कंट्री वाई, तीसरी बात जो उन्होंने फिश प्रोसेसिंग प्लांट परचेज किया है, एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ये सारे मामला हमें डिस्कस करने हैं। वी नीड टू टेल द एग्जामिनर कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एक्चुअली है क्या। जरा एमएसबी जाके देखते हैं इसकी क्या बता रही है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने ये बता दिया, इफ ओनली कंसिडर्ड वन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी हमें एनालिसिस के बारे में बात करनी है, हमें चॉइस के बारे में बात करनी है और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बात करनी है। सिर्फ एक चीज के बारे में बात करी तो हमारा आंसर लिमिट हो जाएगा टू लेवल 1, यानी हम 20 में से इसको ऑटोमेटिकली 10 मार्क पे ले जाएंगे।
ठीक है, we need to tell the strategic management, examiner strategic management is the continuous planning, monitoring, analysis and assessment of the strategic strategies needed for an organization to meet its goal. हमने बता दिया ये होता क्या, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात आएगी कि अब यहाँ पर इस फाइंड एंड अप्रोप्रिएट फॉर कंट्री वाई वाली जो एग्जाम्पल है, मैं कंट्री वाई की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि हमें टेक ओवर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट लॉस की बात कर रही है। जो फूड पॉइजनिंग का केस आ गया वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको डील करने के लिए आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात कंटिजेंसी प्लानिंग की बात भी आ जाएगी। आप तो आपको ये बात करनी पड़ेगी, करेंटली जो मार्को है वो इतनी ज्यादा एनालिसिस और प्लानिंग करता नहीं है, अपने हंच पे डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक यहाँ पर ये भी है इनके पास, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा आंसर ये डेवलप करना है और एग्जामिनर को बताना है दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम वो भी कंसिडर करेंगे दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और एक बात भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम एसएम जितनी भी कर लें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग कितनी भी कर लें, गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। ये सब करने के बावजूद भी हम फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरा आंसर डेवलप करना है। आप लोगों को ये पॉइंटर समझ में आ रहे हैं? यस, आप लोगों को ये पॉइंटर समझ में आ रहे हैं? तो स्टार्ट करवाता हूँ हम लोगों को ये वाला आंसर जहां तक होता है, जब तक हमारी क्लास चलती है 40 मिनट्स तक, ठीक है। बाकी जितना बच जाएगा आप लोग खुद कंप्लीट कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, strategic management is the long term planning, is the long term planning, the long term planning of the business, which involves different steps such as strategic analysis, choice and implementation, full stop. It is a continuous process. It is a continuous process. A continuous process which helps the business, in planning, allocation of resources, controlling and evaluating the business activity, ये हमारे पास आ गया इसका इंट्रोडक्शन। क्या आ गया? इंट्रोडक्शन आ गया। अगला पैराग्राफ, the case identifies that strategic management
is not fully implemented, is not fully implemented, is not fully implemented as the case identifies that strategic management is not fully implemented as majority of decisions impacting the future of MFI are taken by Marco without any detailed analysis as in the case Marco launched the fine dine brand launched the fine dine brand without any research. However, the business was still successful. As the country's economic conditions favored the product. Full stop. अगला पैराग्राफ. Strategic management is important. As it helps in analyzing the internal and external factors which may affect the business before a decision is made. As currently MFI is planning to enter country Y the SWOT and pest analysis will provide
will provide a detailed overview of the market before MFI enters it. Which may reduce the chances of failure. However, the analysis needs to be done on a repeated basis, and once done, it may not always guarantee success. It may not always guarantee success. ठीक है, तो यहां पर हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाला एक पैराग्राफ लिखा। अब आप एक स्ट्रेटेजिक चॉइस वाला एक पैराग्राफ लिखोगे, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन वाला एक पैराग्राफ लिखोगे और एंड में इसको कंक्लूड करोगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि आप ये 20 मार्कर अटेम्प्ट कैसे करोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो आई थिंक ये पूरा आंसर कंप्लीट नहीं होगा और बीच में रह जाएगा। पॉइंटर्स मैंने पहले ही बताए, तो आप अगला पैराग्राफ स्ट्रेटेजिक चॉइस का लिख लो, उसमें आप उसकी कोई भी एक दो टेक्निक्स यानी डिसीजन ट्री को उठा लो, एनसॉफ्स मैट्रिक्स को उठा लो, फोर्स फील्ड एनालिसिस को उठा लो, फिर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में आप कंटिजेंसी प्लानिंग को उठा लो, चेंज कल्चर को उठा लो, कोर कॉम्पिटेंस को उठा लो। इस तरीके से आपका पूरा आंसर डेवलप हो जाएगा। ये ईयर है आपका 16 है, ये अक्टूबर नवंबर 16 3-2। इसका इन्वेस्टमेंट अप्रेजर वाला भी आंसर अपलोडेड है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो। ये वाला आंसर आप करो, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे हेल्प ले लेना। क्लास यही होल्ड कर दें क्योंकि एंड हो जाएगी तो वैसे ही कंप्लीट नहीं होगा। मैंने एनालिसिस वाला लिखवा दिया है, चॉइस और इंप्लीमेंटेशन वाला आप इस पैराग्राफ इसमें एक एक डालोगे तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेरीज है, कोई इश्यूज है तो आप मुझसे पूछ लो, वरना क्लास कॉल ऑफ करते हैं।